Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is a Class 6 General Science presentation by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is particle model of solids, liquids and gases. In today's topic we will discuss about the particle models for solids, liquids and gases. This topic is from chapter number 6, Particles. Students' learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know about the particle model, to describe the tiny particles of matter, and to understand the properties of solids, liquids and gases based on particle model. Contents. This lesson includes the particle model and its assumptions, tiny particles of matter, atoms and molecules, models of particles for a solid, a liquid and a gas, and at the end there will be an assignment. Recapitulation. Recapitulation is a recap or revision of the previous knowledge. In the previous discussion, we learned about a compound which exists in all the three physical states, which was water. Previously, we have discussed about a compound water which exists naturally in all the three physical states, solid, liquid and gas. In solid state, water is snow or ice. In liquid state, water is liquid water, while in gaseous state, it is steam or water vapors. We also discussed the heating and cooling effect on the three physical states of water. On heating, ice melts and changes into liquid water, while on heating, liquid water boils and forms steam. While on cooling, reverse process occurs. On cooling, steam condenses into liquid water, while liquid water on cooling freezes into ice. The particle model of solids, liquids and gases. Let's have a look on the background. Why scientists presented this model? Scientists built up a model to explain behavior of solids, liquids and gases. And that model is called the particle model. Means साइंटिस्ट ने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बिहेवियर को, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल मॉडल प्रेजेंट किया है. The particle model. Particle model has the main assumptions. The particle model is based on three assumptions. Main points इसके 3 हैं. Point number 1. All matter is made up of tiny particles which are continually moving.
It means that materials are consist of small tiny particles and these particles are continuously moving. Point number 2, when the particles are close together, they are attracted to each other. Means when particles come closer to each other, they are attracted by the other particles. And point number 3, heating a material affects the movement of the particles. फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला था कि पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो जो हीटिंग है उससे मटेरियल्स की मूवमेंट पे इफ़ेक्ट आता है. सो 3 एजम्पशंस जो पार्टिकल मॉडल की हैं वो क्या हैं? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. मीन्स कि जितना भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है और ये टाइनी पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं. एंड when the particles are close together they are attracted to each other. पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. एंड हीटिंग अ मटेरियल अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. हीटिंग से पार्टिकल की मूवमेंट पे इफेक्ट आता है. जैसा कि आपको इन डायग्राम्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और गैस के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं. सारे मटेरियल्स पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं. पार्टिकल्स अगर क्लोज़र होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हीटिंग से पार्टिकल्स की मूवमेंट पे इफेक्ट आता है. द पार्टिकल मॉडल. अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अभी जो आपने प्रीवियस डायग्राम्स देखी हैं उनमें आपको कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट नज़र आई है. इन सॉलिड when the particles are closely packed, particles vibrate in a fixed position. particles to and fro motion produce करते हैं एक fixed position पे रहते हुए. while in a liquid particles randomly move करते हैं, they slide over each other. while in gas particles move randomly and fast. जो particles की movement है गैस के अंदर वो fast होती है और वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. इनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता मूवमेंट का. टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वन स्मॉलर देन द अदर. द स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. एटम्स को आपने पहले से डिफाइन कर रखा है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स एंड द लार्जर वंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. स्मॉलर को हम एटम्स बोलते हैं, लार्जर को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. एंड हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड? मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप्स ऑफ एटम्स जॉइंट टुगेदर. हियर इन दिस डायग्राम देयर आर 3 एटम्स and when they join up they form a molecule. मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को, और जब वही मिलके ग्रुप बना लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, तो उसके बाद हम उनको मॉलिक्यूल का नाम देना शुरू कर देते हैं. तो मॉलिक्यूल एटम से थोड़ा लार्जर होते हैं. सो 2 काइंड्स के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स स्मॉलेस्ट होते हैं जबकि लार्जर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स एटम्स के जॉइन करने से फॉर्म होते हैं. टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर. We cannot see the individual atoms or molecules in solids, liquids and gases. Interestingly, हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स को यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली नहीं देख सकते. That is why scientists presented this model, because the particle model shows how they are arranged. अभी देख लीजिए, ऐसे हमारे पास जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन सब के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शो की गई है. सो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, चाहे वो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, हम उनको इंडिविजुअली नहीं देख सकते,
लेकिन जो पार्टिकल मॉडल है वो हमें ज़रूर ये शो कर देता है कि ये पार्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं, चाहे वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अरेंज्ड कैसे हैं उस सॉलिड, लिक्विड या गैस के अंदर। अ मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सॉलिड्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोज इन रोज। देखिए जो सॉलिड्स के अंदर जो है ना स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मॉलिक्यूल्स रोज के अंदर क्लोजली अरेंज्ड होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको वहीं पे होल्ड करती है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री। पार्टिकल्स वाइब्रेट ज़रूर करते हैं, वो अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं और टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। एंड दैट इज़ वाई अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसी वजह से इनकी शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। सो हमने जो सॉलिड का पार्टिकल मॉडल पढ़ा उसमें हम क्या देखते हैं कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड इन रोज बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स चूँकि मूव करते हैं, हमने एक पोस्टुलेट ये भी पढ़ा है मेन पॉइंट्स में कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन में टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होती है, लेकिन फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हुए होती है। चूँकि पार्टिकल्स रोज़ में अरेंज्ड भी होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे भी होते हैं, वहीं पे रहते हुए मूव करते हैं, तो इसलिए जो सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। A model of particles in a liquid. How particles are arranged in a liquid, let us discuss. लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अ लिक्विड, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली नॉर इन एनी पर्टिकुलर पैटर्न। हमने सॉलिड्स में देखा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं, रोज़ में अरेंज्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर उनकी पैकिंग टाइट नहीं होती। दे आर क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली हेल्ड, लूजली हेल्ड होते हैं, आप ये कह सकते हो। दे हैव इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन इन अ सॉलिड। सॉलिड की निस्बत इनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन लीव करते हैं, स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। दैट्स वाई लिक्विड्स कैन फ्लो। इसी स्लाइडिंग नेचर की वजह से, इसी ज़्यादा मूवमेंट की वजह से लिक्विड्स सॉलिड्स की निस्बत मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। एंड those molecules or particles which are present on the surface of the liquid, they form a skin because they are attracted inward by the other particles. वो अंदर की तरफ पार्टिकल्स से अट्रैक्टेड होते हैं, दैट्स वाई वो एक स्किन की तरह कवर फॉर्म कर देते हैं लिक्विड की सरफेस पे। सो पार्टिकल मॉडल जो लिक्विड्स का है वो कैसा है कि इन अ लिक्विड atoms or molecules are held closely but not tightly. It means they are loosely held and they are not present in any pattern. Their energy is more than solids, that's why molecules can move more than in solids. Due to their more movement, molecules can leave their position, molecule can slide over each other. That is why liquids can flow but solids cannot. And at the surface, the particles of liquids are attracted by the other particles which are present on the inner side. That is why they form a skin like cover over liquid. लिक्विड के ऊपर एक कवर सा बन जाता है स्किन की तरह का उन पार्टिकल्स से जो जिनको अंदर वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये सरफेस के पार्टिकल स्किन बनाते हैं। अंडरस्टैंड?
मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? इन अ गैस, atoms or molecules are far apart and move so quickly that they do not really attract each other. अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर होते हैं और इतना फास्टली मूव करते हैं कि उनकी मूवमेंट की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सो जो गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको आप नेग्लेक्टेड ही समझ लें, वो इतनी कम होती है कि नेग्लिजिबल हो जाती है। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स and frequently collide with each other and with the walls of container they are in। ये इस मूवमेंट में जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं तो अपने सामने आने वाले मॉलिक्यूल्स या एटम्स के साथ भी टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, और जिस कंटेनर के अंदर हमने उनको रखा होता है उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड भी नहीं, फार अपार्ट होते हैं, इतने दूर होते हैं और इतना तेज़ी से मूव करते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। और जब वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और जिस कंटेनर के अंदर उनको रखा जाता है उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो मॉलिक्यूल्स जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर जो होते हैं, तो दरमियान वाला सारी स्पेस जो होती है वो एम्प्टी होती है। अब इस लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, इसकी वजह से जो गैसेस होती हैं दे कैन बी स्क्वेश्ड और कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। अंडरस्टैंड? तो मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन गैस किस तरह का होता है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं। आप ये कह लें कि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। ये क्विकली मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट स्ट्रेट लाइंस में होती है। जब ये मूव करते हैं तो उस मूवमेंट में ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसकी वजह से गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, उनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि वो सारी की सारी एम्प्टी स्पेस होती है। अंडरस्टैंड? Interesting facts. There are two interesting facts. Over 1 billion atoms are needed for the ink to make a full stop on the page. आप जब पेज के ऊपर एक पेन के साथ फुल स्टॉप लगाते हो तो उसमें कैन यू इमेजिन कि 1 बिलियन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं इंक के, तब जाके एक मार्क लगता है, एक पॉइंट, सिर्फ एक फुल स्टॉप, छोटा सा डॉट बनता है। एंड more than 99% of the volume taken up by the gas is empty space। और गैसेस के अंदर जो 99.99% उसका वॉल्यूम होता है वो एम्प्टी स्पेस होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि आप समझ लें कि पूरे जितनी जगह अवेलेबल होती है उसमें 99.99% खाली जगह होती है और बाकी 0.01% उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Let us revise the lesson. In today's lesson we have learnt about the particle model of solids, liquids and gases. In this topic we have studied about the particle model of solid, liquid and gases. We have seen that molecules are arranged in specific patterns in solids, but there is no pattern in liquids and gases. So one by one सारी properties को हम revise कर लेते हैं. Molecules are closely packed in solids, loosely held in liquids, while free and far apart from each other in gases. There is a strong attraction between the molecules in solids, while in liquids the attraction is less than solids, but in gases
we have seen that there is almost no attraction between the gas molecules because they do not attract each other while moving quickly. In solids, particles vibrate at their fixed position, while in liquids, particles can move about in the whole liquid. So particles can slide, while in gas, the particles move quickly and randomly. Solids have fixed shape, liquids have no fixed shape, and gases also have no fixed shape because in solids there is a definite pattern and close packing due to the strong attraction of the particles, so solids have a fixed shape. Liquids do not have a fixed shape because the molecules are loosely held. There is a lesser attractive force, that's why particles can move about in the liquid. And gases, in gases, no fixed shape because the molecules move freely and they are present far apart from each other. They move quickly and they have no attractive forces, that's why they have no fixed shape. Solids have fixed volume as well. Liquid has also fixed volume, but in gases no fixed volume is present. Solids cannot flow because the particles are closely packed. They do not leave their fixed position. While in liquids and gases, as in liquids molecules can slide, that's why they can flow, and in gases molecules are far apart from each other and they move quickly, that's why they can flow in all directions. As solid molecules are closely packed, they have no empty spaces between them, that's why solids cannot be compressed, incompressible होते हैं, compress नहीं किए जा सकते. Liquids cannot be compressed because molecules are also loosely held. They are closely packed but loosely held, not tightly held. In gases, molecules are free and far apart from each other, that's why gases can be compressed easily. Dear students, here is an assignment for you. You have to complete this task within the next 24 hours and submit it in General Science discussion group by tomorrow morning. Question number 1. Write down the basic postulates of the particle model. How many postulates of particle model are there? There were 3 postulates and you have to write down all these 3 postulates. Question number 2. Explain why solids do not flow and gases compress easily. You have to answer these 2 questions. Well, it's all for today. Thank you and have a nice day.